Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So today in this another session of this mock practice series, we are going to discuss for the BFM. We are going to discuss for the ABM module C or CIB exam, right? So as we know, the module C is very important. That is covering the whole part of the human resource management. So that will also make you to get some more marks in ABM paper. So let's start some important portions so that it can be helpful for your preparation. So these are some questions that has been covered in the module C of the ABM, right? So try to cover this module C as fast as possible. Cover each topic importantly and make your short notes. That will be helpful to get some easy marks in the exams, right? So आज के सेशन में चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. Objectives of HRM relate to understand dash. So here before answering any of these questions, just try to answer by yourself and later the match with the answers, right? So objectives of the HRM relate to understand dash. जो हमारा HRM रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेनली टू अंडरस्टैंड व्हाट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज फंडामेंटल्स ऑफ HRM, customer and staff behavior, the comprehensive perspective of HRM and relationship with HRD, human resource development, the role of HR professionals and development of HR functions. So the main important objectives of this HRM is to understand the customer and staff behavior, right? So main importantly the staff, the behavioral understanding it includes, right? So option number B is the correct answer. Question number 2. The people component is becoming the key factor to the success of strategy for dash. So the people component है will be the key factor, will be the important factor for the success of strategy for the options survival, growth, achieving experience and social status. जो strategy for कौन सा के लिए आपका important रहेगा, strategy for social status. इसका जो strategy for ये रहेगा आपका सोशल स्टेटस. सो ये जो स्ट्रैटेजी के लिए आपका जो मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर कौन है, पीपल कंपोनेंट, क्योंकि द सोसाइटी. सोसाइटी में इंपॉर्टेंट कौन है, जो आर लिविंग इन द सोसाइटी, जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो है कौन है आपका स्टाफ है. सो जो है वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहते हैं, ठीक है. और जो हमारा मेन क्या होता है आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो जो हमारा की फैक्टर रहता है. सो फॉर द सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी फॉर सोशल स्टेटस हमारा जो है पीपल कंपोनेंट विल बी द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है. So next वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. Regarding functions and structure of HRM and HRD, select the incorrect statement, ठीक है. So with respect to statement and functions, with respect to structure and functions of HRM deals with the human resource management, ठीक है. और HRD होगा human resource, that is D for development. Okay, so these are the options. We need to find the incorrect one. So there is difference only in approach and emphasis. So with respect to HRM and HRD, the only difference will be like HRM and HRD का different approach रहता है. That means उन दोनों का जो main important focusing part होता है वो थोड़ा there is some little difference, ठीक है. सो ये जो सेंटेंस है emphasis with respect to emphasis थोड़ा डिफरेंस है, सही है सेंटेंस. सो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑप्शन बी, HRM is the सब सिस्टम ऑफ HRD. सो यहाँ पर जो है थोड़ा मॉडिफाई होना चाहिए कि ये वाला सेंटेंस ऐसा होता कि HRD जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द सब सिस्टम ऑफ HRM, ठीक है. सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द सब सिस्टम ऑफ HRM. इस सेंटेंस जो है ये वाला थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है. मेन इंपोर्टेंट जो है HRM, उसके बाद आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विद रूटीन फंक्शंस. सो जो नॉर्मली हमारा रूटीन फंक्शंस होता है, ठीक है. स्टाफ मैनेजमेंट कैसे होता है, कस्टमर रिलेटेड नीड क्या करेंगे, क्या क्या हमें करना चाहिए. सो ये जो होता है रूटीन फंक्शंस, ठीक है. सो दैट हैज बीन डन बाय द HRM.
और नेक्स्ट होता है जो एच आर डी डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका फंक्शन जो है एम्फासिस ऑन चेंज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। सो विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट लेवल में जो कुछ चेंजेस होता है ये हमारा एच आर डी डिपार्टमेंट का फंक्शन के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। सो ये भी हमारा जो सेंटेंस है सही है। एंड वी नीड टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था, एच आर एम इज द सब सिस्टम ऑफ एच आर डी, ये इनकरेक्ट था। तो करेक्ट होने क्या है, एच आर डी इज द सब सिस्टम ऑफ एच आर एम। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। So here is your next one. Pick up which one is not true. So first option is personnel department is final authority in policy related decisions. Line management is the final authority in performance related decisions concerning promotions, right? So HR professional must have qualifications in HRM. Managing people is an operational function, so which is not true. Personnel department is final authority in policy. Obviously, while creating the policy, जब हम policy decide करते हैं, final decision लेते हैं, तो final authority is the personnel department, right? So next one is the line management जो होता है वो क्या करता है, this is the final authority in performance related decisions. जो भी promotion में हमारा performance, जो भी employees होते हैं, we need to calculate, we need to evaluate the performance. Accordingly, we need to give the promotions. In that case, the line management will be the the key factor one, right? So next one is HR personnel must have qualifications in HRM. So जो लोग HRM डिपार्टमेंट में रहते हैं, हमारे बैंक के केस में भी, so they are specialized one in human resource management, right? So managing people is an operational function. So यही वाला जो है wrong है, ठीक है। So this is the odd one. Managing people is an क्या function है? This is an line and staff function, ठीक है। This is not operational function. This is line and staff function. Got it? So next वाला क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so this is the next one. Pick up the wrong one. So these are the some options. इसमें से मैक्सिमम जो है 5 ऑप्शन दिया है, उसमें से 4 है राइट एंड एक जो है रॉन्ग है, ठीक है। सो लेट मी गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। Job description is about the job that an employee has to perform. So obviously this one is also correct. जो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें क्या बोला जाता है कि जो भी डिटेल्स ऑफ द जॉब रहता है, एक एम्प्लॉइज को क्या परफॉर्म करना होता है, उस जॉब में उसका रोल क्या होगा, उस जॉब में उसका मतलब जो है वो क्या करने वाला है। सो एवरीथिंग विल बी डिस्क्राइब्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। सो जॉब स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस। सो जॉब स्पेशलाइजेशन मीन्स आपका जो जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका एज फैक्टर क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है एंड आपका एजुकेशन कितना उसके लिए फिट अप होता है, ठीक है। सो ये आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में जाता है। सो देखिए आपको यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन का मीनिंग पता चल गया, जॉब स्पेसिफिकेशन का, राइट। सो ये दोनों सही है। सो नेक्स्ट है job evaluation related to the comparison between similar job within the organization or between the organizations or within the industry. Obviously job evaluation कब होता है, जैसे कि यहाँ पर एक जॉब है, यहाँ पर एक जॉब है, सो हम within the same organization भी कंपेयर करते हैं, how the job is done by all the employees, right। सो और हम नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में करेंगे कि हमारा जो स्टाफ है इनका परफॉर्मेंस हमारा ऑर्गेनाइजेशन ए का परफॉर्मेंस इसके साथ कैसे कम्पीट कर रहा है और विद इन द सेम इंडस्ट्री। सो दिस विल इंक्लूडेड इन द जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस, राइट। सो नेक्स्ट है ए टेक्निक व्हिच फैसिलिटेट्स द लिस्टिंग ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क और जॉब, राइट। सो ये जो होता है फैसिलिटेट्स द लिस्टिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क और ए जॉब। सो क्या कौन सा वाला है जॉब हमें करना है, कौन सा वाला टास्क करना है, सो दैट विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाइप्स ऑफ ऑल द थिंग्स, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। सो हियर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। सो जो भी हमें ये वाला ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें लिस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। ये टेक्निक मतलब आपका जो लिस्टिंग, हमें कोई भी जॉब परफॉर्म करने से पहले उसको शेड्यूल करना पड़ता है, 1 2 3 4, पहले हमें कौन सा करना है, नेक्स्ट वाला कौन सा करना है, नेक्स्ट वाला कौन सा है, दैट विल आल्सो इन द पार्ट ऑफ द जॉब। जो भी होता है ये इट्स लाइक ए प्रायोरिटी,
प्रायोरिटी कौन सा है, कौन सा हमें जरूरी है, हमारा जो क्लाइंट के लिए कौन सा फर्स्ट है, सो अकॉर्डिंगली वी विल परफॉर्म द टास्क और विल परफॉर्म द जॉब. सो हियर ऑप्शन नंबर E is the correct answer. All the options are correct, right? So next वाला क्वेश्चन देखिए, dash is the learning to prepare the individual for different but identified jobs. So यहाँ पर जो कुछ है कौन सा वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा डेवलपमेंट, बी है ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन में कौन सा वाला सही है इस जो क्वेश्चन के लिए. dash is learning to prepare the individual for different but identified jobs. That means वो एक है जो कि जितने भी इंडिविजुअल है उनको प्रिपेयर करेगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स और आइडेंटिफाइड जॉब्स. आइडेंटिफाइड जॉब्स मीन्स वो कौन सा एक पॉइंट है जो रिलेट करता है विथ द आइडेंटिफाइड जॉब. दैट मीन्स दिस इज द एजुकेशन, जो कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली ही उसका आइडेंटिफाइड मीन्स उसके रिलेटेड वो जॉब कर सकता है. ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि एक एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड जॉब रहता है, बट उसका एजुकेशन रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि कोई हमारा टेक्निकल ग्राउंड से आया पर वहाँ पर हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी कवर किया जाता है. अगर अपना स्पेशलाइजेशन हो गया, अभी टेक्निकल लोग भी अपना बैंकिंग में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका जो नॉलेज है इतना टेक्निकल नॉलेज तो नहीं, पर उनका जो एनालिटिकल पावर यूज होता है. ठीक है, पर उस केस में कोई अगर टेक्निकल से आके जाके कोई सीए जो है एक चार्टर्ड अटेंडेंट, वो लोग जो करते हैं वो नहीं कर सकता है. ठीक है, जो एक सीए मैनेज कर सकता है वो एक टेक्निकल मैनेज नहीं कर सकता. पर जो एनालिटिकल जॉब है, जो मार्केटिंग जॉब है, दे कैन आल्सो डू. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कमिंग इन टू आवर बैंकिंग सेक्टर. सो हाउ, सो ऐसे ही हम एजुकेशन को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं. एजुकेशन क्या है, आपको प्रिपेयर करेगा कि इंडिविजुअल को और डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब्स. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट देखिए, when the adult education is organized with the model is known as. जब हमारा adult education अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है उसके साथ अगर adult education इंक्लूडेड हो जाता है then it is known as pedagogy. ठीक है, so option number C is the correct answer, pedagogy. so next है देखिए, transfer of learning to workplace take place at which level of evaluation of training. so जो भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में होता है वो क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट हमारा एक फैक्टर रहता है ना, जो भी हम ट्रेनिंग में करते हैं, वॉट एवर वी हैव लर्नड इन द ट्रेनिंग प्रोसेस दैट शुड बी ट्रांसफर टू द वर्क प्लेस, दैट शुड बी implemented in our work related things, right? So at which level, first one is reaction level, learning level, behavioral level and function level. then ये हमारा जो है learning जो वर्क प्लेस में कैसे ट्रांसफर हुआ है नहीं कैसे पता चलेगा, वी विल गेट टू नो. दैट मींस इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग. इवैल्यूएशन प्रोसेस मतलब क्या है, जो भी ट्रेनिंग हुआ है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा है जो हमारे एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर. ठीक है, उनका एटीट्यूड के ऊपर, उनका काम करने का तरीका के ऊपर. ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के ऊपर व्हाइल डीलिंग विद द डिफरेंट क्लाइंट्स. सो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियरल फैक्टर जो है वो डिसाइड कर लेगा कि एक्चुअली में लर्निंग का जो है मेन मोटो था दैट हैज बीन ट्रांसफर टू द वर्क प्लेस और नॉट. राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा वाला है. सो Knowles or Nadler categorize the adult learning process in different theories. ठीक है, सो इसमें adult learning process को कौन कैटेगराइज किए हैं, नाडलर और नॉयल्स. सो मैच द फॉलोइंग्स. यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा मैकेनिस्टिक बिहेवियरिस्टिक, ऑप्शन बी है ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एंड सी है कॉग्निटिव थ्योरीज. ठीक है, सो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिया है, इसके साथ हमें इसको रिलेट करना है. इक्वेट मैन विथ हिज ब्रेन, लर्नर इज पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, फ्रीडम टू लर्न. ठीक है, सो यहाँ पर हम ऑप्शन अगर देख ले जो है मैकेनिस्टिक और बिहेवियरिस्टिक, इसका मतलब ये होता है लर्नर इज पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब है अगर लर्नर पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और इतना अपना ध्यान दे नहीं रहा है, इट्स नॉट दैट मच समथिंग फोकस्ड वन, सो वी कैन से ही इज मैकेनिस्टिक और बिहेवियरिस्टिक. ठीक है, सो नेक्स्ट वन है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमनिस्टिक. सो ये है
इसका मतलब है फ्रीडम टू लर्न. दैट मीन्स इन द लर्निंग प्रोसेस वी आर गिविंग फ्रीडम टू all the participants to learn as per their need. They can ask anything, right? So that their learning process will be fully, valuable or meaningful. ठीक है. So यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया freedom to learn. So ऑप्शन में cognitive theory means equate man with his brain. ठीक है. So cognitive theory implies the equate man with his brain. So A हो गया हमारा 2i. यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 2i, B हो गया 3 के साथ freedom to learn and C हो गया आपका equate man with his brain. So ऑप्शन नंबर B is the correct answer. So ये वाला क्वेश्चन देखिए. The training and development involves the following. जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसमें ये कुछ पॉइंट्स है जो इंक्लूडेड है. फाइंड द ऑड वन. कौन सा वाला नहीं है, व्हिच वन इज नॉट इंक्लूडेड. सो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स. सो ऑब्वियसली दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट जो है हमारा जब भी हमें ट्रेनिंग करेंगे कि हमारा उस ट्रेनिंग का गोल क्या है, उस ट्रेनिंग का आउटपुट क्या होना चाहिए, वो हमें जानना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय के लिए क्या जरूरत है. वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट. कंडक्टिंग द ट्रेनिंग. सो कैसे कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, फर्स्ट शुड बी द प्रोसेस ऑफ दैट ट्रेनिंग. सो ये कंडक्टिंग कहाँ पर है प्रोसेस, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है. ड्यूरेशन ऑफ दैट ट्रेनिंग, ऑब्वियसली 1 डे का ट्रेनिंग जरूरत है, 2 डे का ट्रेनिंग. सो एज पर द नीड ऑफ दैट ट्रेनिंग वी नीड टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन. ठीक है. सो ये भी हमारे लिए जरूरत है. सो नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेनर्स. ऑब्वियसली फॉर द ट्रेनिंग प्रोसेस मेन इंपॉर्टेंटली वी नीड टू सिलेक्ट द वेल ट्रेन्ड ट्रेनर्स. ठीक है. जो लोगों का अच्छा नॉलेज है उनको सिलेक्शन करना एज पर द नीड ऑफ द ट्रेनिंग. ये सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेनिंग ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. सो ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग. इवैल्यूएशन ट्रेनिंग क्या है ना, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है, पर इट्स नॉट इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर. अगर हमारा 1 to 3 तक मतलब ये होता है ट्रेनिंग होता है, तो इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी द आफ्टर प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद जो प्रोसेस होगा इवैल्यूएशन, उसका वैल्यूएबल हुआ या नहीं वी नीड टू कैलकुलेट. ठीक है. सो इवैल्यूएशन प्रोसेस ना विल गो ऑन. जैसे कि 3 दिन का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि अपना एम्प्लॉय का बिहेवियरल, उनका जो है काम करने का तरीका में इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं, जैसे अभी हमने बताया है. सो ये जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद का प्रोसेस है. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर A to 4 ये जो है इंक्लूडेड है. ऑर्डर 1 इज इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग. सो नेक्स्ट वाला देखिए, लास्ट 2 ones. सो नेक्स्ट वन द थियोरीज एसोसिएटेड विद द एक्चुअल टीचिंग आर. सो जो एक्चुअल टीचिंग के साथ जो भी थ्योरीज एसोसिएटेड है एंड व्हिच वन इज ऑड वन. फर्स्ट वन है लर्निंग इन एम्प्लॉय in enhanced when the learner is motivated. So learning is this one is the learning is in employees is enhanced when learner is motivated. Obviously जब हम actual teaching में क्या होता है, मतलब जो learner maximum will learn, the learner will learn maximum when the learner will motivated. ठीक है. So we need to motivate the learners. So this is also included. So learning requires feedback. सो लर्निंग रिक्वेस्ट फीडबैक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो भी हम लर्न मतलब पढ़ा रहे हैं, जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इफ यू विल नॉट टेक द फीडबैक देन वी कैंट अंडरस्टैंड द वेदर द ऑल द पार्टिसिपेंट्स अचीविंग और गेनिंग सम नॉलेज और नॉट. ठीक है. सो हमारा मेन मोटो है कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको, जो भी एम्प्लॉइज और जो भी स्टाफ्स हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं, उनको लर्निंग हुआ है नहीं, कैसे पता चलेगा. वी नीड टू टेक द फीडबैक. सो फीडबैक विल play one important role. So this is also true. So reinforcement increases the likelihood that a learned behavior will be repeated. ठीक है. So जो भी learned behavior है, अगर वो वाला सही है, then हमें कैसे पता चलेगा. So that behavior will be repeated more and more times. ठीक है. So this is also true. Learning must be non-transferable to job. Obviously that's not the true. Actual teaching मतलब वही होता है, जो भी हम लर्न करते हैं, जो भी हमारा एम्प्लॉय को हम सिखाएंगे, वो क्या होगा, उनका जो जॉब, इसका जो जॉब प्लेस है, जो भी वर्क प्लेस है, वहाँ पर ट्रांसफर होना चाहिए. उसका काम में वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क. ठीक है. सो लर्निंग मस्ट बी नॉन ट्रांसफरेबल, नहीं, ये होगा ट्रांसफरेबल टू द जॉब. सो ये वाला जो है दिस इज द ऑड वन. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. पर ये जो है हमारा आंसर है, और ऑप्शन डी आंसर पूछा है हमें क्या करने के लिए, ऑड वन कैलकुलेट करने के लिए. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं. द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. सो इवैल्यूएशन ट्रेनिंग में these are the process in the evaluation process. So which one is not included, the odd one. So reaction level, learning level, behavioral level, operation level. ठीक है. So evaluation process में हमारा एम्प्लॉय जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनका रिएक्शन कैसा है, so this is included. learning level, उनका learning percentage कितना हुआ है, so this is also included. and behavioral level, so obviously how much the employees are motivated, उनका काम में कैसे रिफ्लेक्ट किया है, the training process should be reflected in the
आर वर्क प्लेस. सो बिहेवियरल लेवल उनका कैसे रिएक्शन हुआ है, whether they are satisfied or not, whether the employee has been learned something or not, so we need to evaluate all those things. So this is also included. For operational level is not the part of that, so this is the odd one. So option number D is the correct answer. So hopefully you like this session. Thanks for watching and मिलते हैं एक न्यू अपकमिंग सेशन में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग. ठीक है, बहुत कुछ टाइम है. और जो दिस मॉड्यूल सी I tell you every time that focus on this module C in case of AVM. If you are not confident in of this module B or numericals, and this module C will help you to gain some more and more mark. ठीक है, so चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में. टाटा, बाय बाय.